Now, I would like to request our chair, IEEE, Dr. Nurul Islam sir, to present a memento to our chief guest as an expression of our gratitude. Before starting the event, I would like to introduce to you all about KIT, Indus Technical Education Society, ITES, a society promoted by a team of visionary and motivated IIT alumni, established an institute named KIT in 2004. It runs courses like BTech, MTech, BFA, MBA, MCA, BFAD, and Polytechnic. KIT is a certified institute and approved by AICTE New Delhi and affiliated to AKTU and BTE Lucknow. Now, I would like to tell you all about our IEEE branch. IEEE stands for Indian Institute of Electrical and Electronics Engineering. It is a professional organization which provides the latest technical knowledge for its members through conferences, journals, workshops, and continued education for advancement of technology for humanity. With more than 4 lakhs members in more than 160 countries, IEEE is the world's largest technical professional society. IEEE student member branch of KIT STB 18791 is successfully run by Chair Dr. Nurul Islam Sir, Councillor Dr. Brajesh Varshane Sir, Secretary Ms. Kritika Varshane Ma'am, and Webmaster Mr. Rahul Singh Sir. IEEE student members are Adarsh Pandey, Vikram, Simran, Shweta Tiwari, Jyotsna Yadav, Aanchal Gupta, Harsh Agnihotri, Ram Bahadur Singh, Rishabh Mishra, Akash Gupta, Arpita, Pragya Pandey, Abhinav Nigam, Aditya Kumar Chaudhary, Anurag, Mohit Yadav, and Utkarsh Chaurasia. Under this, we conduct several seminars and workshops. And today, our topic is digital marketing. It is also called online marketing. It is promotion of brands to connect with potential customer using the internet and other forms of digital communication. Digital marketing includes not only email, social media, and web based advertisement, but also text and multimedia messages as a channel. Today, we have Mr. Ankit Gupta, sir, Director of Laksh IT Solution, a certified institution for our workshop, where they not only teach the concept but also help you to learn that how you can practically implement those concepts on the industry level. Also, workshop, events, and other activities are performed to encourage student industry interaction. They prepare them for their job interviews and make them industry ready. Now, I would like to invite our honorable chief guest, Mr. Ankit Gupta, sir, to kindly enlighten us with the topic. Sir, please. Okay, fine now. So hi all, a very good afternoon to all of you. Hopefully my screen and my audio is audible to all of you. If yes, then please confirm me at once. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine.
ओके फाइन। सो अभी आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो केआईटी कॉलेज ने आप सभी लोगों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमेशा से ही मेहनत की हुई है। अलग अलग तरह के वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल लेवल और इंडस्ट्री लेवल की नॉलेज देने के लिए केआईटी ने हमेशा से ही अपने 100% एफर्ट्स दिए हुए हैं। अभी आज के सेशन में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि एक अच्छा डिजिटल मार्केटर कैसे बना जा सकता है। साथ ही साथ आप अपनी डिग्रीज को तो कैरी ऑन कर ही रहे हो, डिग्रीज के साथ ही साथ आप लोग अपनी स्किल्स पर कैसे काम करोगे, किस तरीके से आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आने वाले अलग अलग तरह के सेगमेंट्स को सीखोगे, समझोगे और उनको इंडस्ट्री लेवल पर इम्प्लीमेंट करोगे। सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित गुप्ता है और हम लोग लगभग पिछले 6 सालों से इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल लेवल की नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने 2017 में लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के नाम से इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था। इसी के साथ साथ मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के साथ में भी काम किया हुआ है। और अभी आने वाले समय में हम लोगों का जो टारगेट है वो पैन इंडिया लेवल पर लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस की फ्रेंचाइजी को फैलाना, लोगों को प्रैक्टिकल लेवल पर नॉलेज देना और उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देना जिससे कि उनकी जॉब लग सके और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पे सेटल हो सके। ओके। लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के नाम से जब मैंने इस ब्रांड को शुरू किया था आज से लगभग 6 से 7 साल पहले, तो मेरा केवल एक इतना सा मोटिव था कि अपने देश में बेरोजगारी बहुत है, लोगों के पास डिग्री होने के बाद भी वो कहीं पर भी एक ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं जिससे कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। मेरा केवल मोटिव इतना है कि मैं आप लोगों को लगभग इस 1 वीक की वर्कशॉप में अच्छे से ट्रेनिंग दे सकूं। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी अलग अलग तरह के सेगमेंट आप देखोगे उन सबको आप प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करोगे और डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। अभी तक केवल और केवल आप डिजिटल मार्केटिंग शब्द को सुने हुए हो, आपने कहीं पर भी डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में बातचीत नहीं की है। तो अभी आज से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले लगभग जितने भी लोग इस सेशन में कनेक्टेड हैं सबके साथ तो बातचीत कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर 1 बाय 1 करके कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्प्ले कराए हुए हैं। आप में से कुछ लोग जो कि चाहते हो मेरे से डायरेक्ट बातचीत करना, वो अपने ऑडियो को नीचे से अनम्यूट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस का 1 बाय 1 करके आंसर देंगे, ताकि मैंने तो आपको अपने बारे में बता ही दिया है कि मैं क्या हूं और मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आप एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हो आप उसके बारे में जानो, बट ये ट्रेनर का भी फर्ज बनता है कि वो जिस स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है उस स्टूडेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके। सो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, आपको नीचे से अपना अनम्यूट हटाना होगा, ठीक है। और स्क्रीन पर लगभग कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट इज योर नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी योर नेम, समथिंग अबाउट यू, योर क्वालिफिकेशन, currently what you are doing and why you want to learn digital marketing. Okay, so anyone can start. लगभग 5 मिनट्स का ये Q&A सेशन हम लोग करेंगे। Anyone can start, please. Hello, sir. Hello. Sir, my name is Shweta Tiwari. Okay, Shweta, good afternoon. Good afternoon, sir. And so my qualifications are right now I'm pursuing BTech from KIT, and my branch is ECE, Electronic and Communication Engineering, and Okay, I'm in second year, sir. okay. And श्वेता, sir, डिजिटल I मार्केटिंग really क्यों want to सीखना know about. चाहते हैं? Sir, basically, I want to learn this because, like my dad, he is a businessman, and so I really want to help him in that. ओके फाइन। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में श्वेता क्या जानते हो आप? सो बेसिकली डिजिटली मतलब बेसिकली सर डिजिटली हम लोग कैसे अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, लाइक फंड्स, किसी को अगर पैसा चाहिए तो पैसा लेना या देना हो गया, और अपने जो हम लोग का जो बिजनेस उससे ग्रो मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट करना, और बेसिकली सर ईमेल्स या फिर टेलीफोनिक वे के थ्रू, मतलब सर ऑनलाइन मोड पे बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हो जाते हैं जिससे हम लोग अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं सर। ओके, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। और कोई? थैंक यू सर। ओके फाइन। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है।
आप सभी लोग वन बाय वन करके अपना म्यूट हटा सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज। कोई भी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे भी दो लोग बैठे हुए हैं। ओके ओके ओके, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो आप? ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके ओके क्योंकि उसका इनकम चीज बहुत एंड होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो तभी तो उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन जो लास्ट फील्ड तो उसकी फील्ड की आजकल समय है कि फील्ड बहुत कम है, तो उसके अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया करना चाहिए। तो वो कैसी चीज कि उसमें इन्वेस्ट जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गुड एक्सप्लेनेशन। बैठिए। ओके, आ रहे हैं उसको कैसे और अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं, इस चीज को और अच्छे से कर सकते मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स तक हम रीच कैसे कर सकते हैं, दिस इज द पॉइंट। और उसका फीडबैक भी मिले कि हम सही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, हैं। एग्जैक्टली लिए इस फील्ड में बहुत स्कोप है। Exactly. मतलब इस फील्ड में जा सकते हैं और काफी लोग उनसे जुड़ सकते हैं जो भी बिजनेस रिलेटेड अपना इंटरेस्ट मतलब जो भी ग्रो करना चाहते हैं, और उनसे वो कुछ जैसे एनालिटिक्स है या फिर कैसे सोशल मीडिया से वो और इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको काम मिल सकता है ना। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है वो भी अपने आंसर्स दे सकते हैं। 2 मिनट का समय मैं और लूंगा। आपके स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Sir, हाँ जी, प्लीज बताएं प्लीज। sir, my name is Mohammad Suhail, and currently I am pursuing MBA from KIT, and I am on the first semester. ओके Okay, and why I want to learn digital marketing? Because I want to learn with the digital things. As currently I am doing pursuing MBA, I want to learn with the business statistics, business analytics as well. I want to learn digitally as well as the more currently more digitalized business world. That's why I want to learn the digital marketing. ओके श्योर, फाइन, डन। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? डू इट फास्ट प्लीज। ओके फाइन, सो नहीं बताना चाहेंगे तो बस ठीक है, यहीं तक हम लोग रखते हैं क्यूएंडए सेशन को, चीजों को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप सभी लोग लगभग कुछ ना कुछ जानते हो। आप लोगों को एक मतलब कहा जाए ना तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आज का ये सेशन खत्म होते होते लगभग आपके पास इन 4 क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट इज मार्केटिंग, द सेकंड वन इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग, एंड व्हाट आर द बेसिक स्किल्स यू नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जिसको सीखना होगा तभी हम डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आप लोगों ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट तो देखे ही होंगे। काफी सारे लोगों ने एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे देखा होगा। आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हो तो वहां पे भी अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट आपको दिखते ही होंगे। साथ ही साथ न्यूज़पेपर पे भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। आपको रेडियो पर भी एडवर्टीजमेंट सुनाई देते हैं, काफी लोग रेडियो सुनते होंगे, तो रेडियो में भी अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट आया करते हैं जो आपके आरजे वगैरह बोला करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये सब तो देखा ही होगा। तो ये जो मार्केटिंग की टेक्निक है ना, ये सालों से चली हुई आ रही है।
हम लोग कहीं पर भी रोड पे निकलते हैं या फिर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कभी टीवी वगैरह देखते हैं, तो हम लोगों को अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी कस्टमर्स तक पहुंचने की। अभी आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप लोग सोशल मीडिया चलाते हो। एक सर्वे के दौरान ये देखा गया है कि नॉर्मली हर आदमी 1 से 1.5 घंटे तो अपना दिन का सोशल मीडिया पे देता ही देता है। फिर चाहे वो फेसबुक हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली समय स्पेंड करते हो। तो देखा जाए तो वो भी मार्केटिंग का एक तरीका था, और ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है कि भाई टीवी पर ऐड चलवा रहे हैं, न्यूज़पेपर पर ऐड चलवा रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनियां अलग अलग तरीके अपनाती थी अपने एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए। और ये जो एडवर्टीजमेंट चलाने का तरीका था ना, ये एक ऐसा रास्ता था जिससे कि कभी भी अगर कोई बिजनेसमैन एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो कस्टमर तक अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकता है। ठीक है ना। देखो, सर्विसेज को पहुंचाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया, आपने लोगों को उस बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो वो लोग आपकी सर्विस ऑन द स्पॉट खरीद ही लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि उन्हें आज नहीं, साल भर नहीं, 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी, वो तब आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी सर्विस को खरीदेंगे। आपके स्क्रीन पर मैंने कुछ डेफिनेशन शेयर की हुई है कि मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होता है। देखो, अलग अलग तरह के फिलोसफर्स हमेशा से ही रहे हैं अपने इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर। तो लोगों का हर एक चीज को देखने का जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। काफी सारे लोगों ने रिसर्च करा और रिसर्च करके मार्केटिंग की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये मैंने कुछ आर्टिकल से डेफिनेशंस निकाली हुई है जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर मार्केटिंग की शेयर की हुई है। काफी लोगों का कहना है कि मार्केटिंग एक ऐसा सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको अपनी चीजें डिलीवर करेंगे, साथ ही साथ उनके साथ में अपने एक्सचेंज करेंगे क्या ऑफर्स, कि हम आप मेरे से ये चीज खरीद लीजिए, हम आपको इतना ऑफर दे देंगे। साथ ही साथ इन्होंने अलग अलग तरह की डेफिनेशन शेयर की हुई है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। मेरी नजर में अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग क्या है मैं ये बताता हूँ। देखो, मार्केटिंग का समझने का जो नजरिया ना वो सबका अलग अलग है। मैं मार्केट का हूं तो मेरे को मार्केटिंग का डेफिनेशन एकदम अलग लेवल का समझ में आता है। मार्केटिंग कुछ नहीं अगर देखा जाए तो। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले जरा आप ही लोगों से पूछते हैं, आप लोग बताओ मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग। अपनी लैंग्वेज में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाइंग एंड सेल प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग, द फर्स्ट वन। और बताओ, और इधर कोई बोलते जाओ। देखो, जब तक आप लोग 10 12 15 डेफिनेशन गलत नहीं दोगे तब तक सही वाली समझ में आएगी ही नहीं। बताओ, और कोई बताना चाहेगा? ऑनलाइन वाले, श्वेता प्लीज बताइए। सुहेल। Exchange of ideas. एक्सचेंज ऑफ of आइडियाज the इज। product and ओके, बोलते जाओ, सारे आंसर ले रहा हूं मैं। देखो, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट समझिएगा इस बात को। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक सीखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं आपको किसी भी एकेडमिक लेवल के सिलेबस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों की स्किल डेवलप करने आया हूँ। अगर आप ही लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे, तो आपको खुद ही सीखने में मजा नहीं आएगा, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए सभी लोग पार्टिसिपेट करें। मैं जितने क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ गलत बताइए, सही बताइए, बट अपने ओपिनियन शेयर करिए। व्हाट इज मार्केटिंग? टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मैसेज मत करिए प्लीज, बार बार अनम्यूट करके बोल दीजिए, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी बार बार मैसेज को पढ़ना। आंसर आपका बिल्कुल भी सही, जिसने भी आंसर दिया है। श्वेता, आर यू देयर? Yes, sir. यस प्लीज श्वेता, आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज मार्केटिंग? So basically, marketing is to sell your product, sir, on a large scale or on a small scale. मतलब बेसिकली आपको प्रॉफिट होना चाहिए। मार्केटिंग मींस इफ यू आर सेलिंग समथिंग तो आपको प्रॉफिट उसका होना चाहिए सर। ओके, चलो मेरी नजर में डेफिनेशन को समझ लो क्या है। मार्केटिंग कुछ नहीं है, मार्केटिंग एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन जनरेट करोगे। क्या करोगे? अपने कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन जनरेट करोगे, सो दैट वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन जनरेट कर देना है। सो लाइक दैट की फॉर एग्जांपल MBA चाय वाला है, ठीक है, उसने क्या कहा कि अगर किसी के मन में चाय पीने का ख्याल आएगा तो वो सबसे पहले हमारे पास आएगा। परसेप्शन क्रिएटेड है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे एक जैकेट लेना है,
मेरे मन में कोई एक अच्छा सा ब्रांड है, वो उसने क्या करा है, उसने जाहिर सी बात है ना ब्रांडिंग और प्रमोशन किया हुआ है। कल तक मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं वो महंगा ब्रांड नहीं पहन सकता था, लेकिन मुझे उसका अवेयरनेस था कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है ये बेसिकली इस लेवल के जैकेट्स बनाता है। यस और नो? तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब आपके पास पैसा होगा आप खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग स्कूल लाइफ में होते हैं ना, उनका सपना होता है कि मुझे एक महंगी से महंगी गाड़ी चलानी है। आप कितनी महंगी गाड़ी सोच सकते हो, सोचते हो, है ना? क्यों सोचते हो? जबकि आप ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप सोचते हो। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्रांड मेहनत कर रहा है। आप आज नहीं तो कल, कल पैसे वाले होगे, कल उसको लेने जाओगे। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो अगर वन लाइन डेफिनेशन में मार्केटिंग का दूं, so just please take out pen and paper and write down some points also. Marketing is the process just a minute guys, just a minute. क्या हो गया? पर्सनल मोबाइल फोन में आप लोग कनेक्ट कर लीजिए। तो मार्केटिंग क्या है? अगर मेरे नजरों में आप मार्केटिंग को समझेंगे तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन क्रिएट द परसेप्शन इन योर कस्टमर माइंड सो दैट दे विल बाय योर प्रोडक्ट। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। यही मार्केटिंग होती है। ओके, सो होपफुली अब आप लोगों को मार्केटिंग का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। जो लोग लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं। ओके फाइन। सो मार्केटिंग तो आप लोगों ने समझ ली, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए, ये सिंबल किस चीज का आ रहा है? ऑनलाइन वालों से पूछूंगा। चलो ये सिंबल किस चीज का आ रहा है बताइए। ऑडी। ऑडी सर, ये ऑडी का सर, Android. एंड्रॉइड, एंड्रॉइड। ओके फाइन। दिस वन Sir, आया नहीं। विजिबल नहीं है क्या? Blank है। Pepsi. पेप्सी का सर। मेरे ख्याल से शायद कुछ पेप्सी सर, नेटवर्क इशू हो सकता है। किस चीज का लोगो है भैया? Pepsi. पेप्सी का सर। अब बताओ। नाइकी। नाइकी, नाइकी। नाइकी, ओके नाउ, एडिडास। एडिडास, Adidas. नाउ ये नहीं पता। न्यू बैलेंस। सोच लो, Oh. सोच लो, दिमाग लगा लो भाई। ब्लैकबेरी। वेरी गुड, ब्लैकबेरी। तो एक बात बताओ, हाँ। ये सारे के सारे जो ब्रांड हैं, मैं ये गारंटी से कहता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने 6 के 6 ब्रांड यूज करे होंगे। बोलो यस या नो? कोई भी ऐसा है जिसने 6 के 6 ब्रांड यूज करे हो अपनी लाइफ में? तो No, Pepsi किया है sir. ये। नहीं, सारे 6 के 6 बात कर रहा हूँ। नो सारे सर, नहीं किए। ब्लैकबेरी नहीं किया सर। सारे नहीं किए। नहीं सर, नो देखो, सर, अब सुनो मेरी बात। होता क्या है ना, इन सारे ब्रांड ने मेहनत करी ना, इन सारे ब्रांड ने आपके माइंड में परसेप्शन जनरेट कर दिया ना। आपको जरूरत हो या ना हो, लेकिन आप इनका लोगो देख करके पहचान गए ना कि ये पर्टिकुलर ब्रांड करता क्या है। ब्लैकबेरी का सिंबल देखते दिमाग में क्या आया? कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाते हैं, ये मोबाइल फोन बनाते हैं, है ना? पेप्सी तो भाई बहुत पुराना ब्रांड है। तो देखा जाए तो बेसिकली इन सारे ही ब्रांड ने मेहनत करी, इन सारे ही ब्रांड ने मार्केटिंग की, और इन सारे ही ब्रांड ने आपके माइंड में परसेप्शन जनरेट करके रखा हुआ है। आपको जब जरूरत पड़ेगी तब आप इन ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करोगे। ओके, सो होपफुली अब समझ में आ गया होगा कि परसेप्शन कहते किसे हैं। अपनी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की पूरी जर्नी के दौरान इस परसेप्शन शब्द को मैं बार बार यूज करूंगा और बार बार आपको बताता रहूंगा। मार्केटिंग कुछ नहीं है, केवल और केवल परसेप्शन को ही मार्केटिंग समझना है थोड़ी देर के लिए। डेफिनेशंस को पढ़ करके कभी किसी चीज को नहीं समझ जाता है। आप उस चीजों को रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर पा रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो होपफुली मार्केटिंग समझ में आ गई होगी। मार्केटिंग को थोड़ा और समझो, मार्केटिंग को थोड़ा सा और समझो, मैं थोड़ा डीप में और जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अपनी ई बुक लॉन्च की और उस ई बुक की कॉस्ट कितनी रखी हुई है? 199। ओके, एक कंपनी थी
प्रिंट मीडिया कंपनी थी जिसने अपनी एक ई बुक लॉन्च की, उस ई बुक की कॉस्ट कितनी रखी है? 199। ओके, सेम उस कंपनी ने उसी बुक को प्रिंट कर दिया और उसकी कॉस्ट कितनी रख दी? 500 रुपीज। अब एक बात बताओ, सभी लोग प्लीज ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे? एक कंपनी थी जिसने एक बुक लॉन्च की, ई बुक लॉन्च किया उसने 199 में, प्रिंट बुक लॉन्च किया उसने 500 रुपीज में, ठीक है। अब एक बात समझना, आप में से कितने ही लोग हैं जो ई बुक को पसंद करते हैं? पहले बताओ मुझे, रेज योर हैंड। जूम मीटिंग में नीचे रेज योर हैंड का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दिया करो। कितने लोग हैं जिसने जो ई बुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं? प्रिंट बुक को, ओके। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कितने लोग ई बुक को प्रेफर करेंगे? एग्जैक्टली देखिए, पहली बात तो अपने इंडिया में एक मेंटालिटी है, सस्ता सस्ता जहां मिल रहा होगा लोग वहां भागेंगे। कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने ई बुक की कॉस्ट 199 रखी है। लोग सस्ता देखेंगे, सस्ता देख करके उसके पीछे भागेंगे और उनका मन होगा कि मुझे ई बुक ले लेनी है, ठीक है। कंपनी ने उसी का प्रिंट वर्जन रख दिया, प्रिंट बुक 500 रुपए में वो दे रहे हैं, ठीक है। अब कस्टमर के माइंड में आएगा कि यार चीजें तो वही लिखी हुई हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बुक बहुत पॉपुलर है, रिच डैड पुअर डैड, शायद आप लोगों ने सुना हो या उसके बारे में पढ़ा भी हो। तो रिच डैड पुअर डैड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोगों ने कहा यार रिच डैड पुअर डैड मुझे इंटरनेट से भी मिल रही है, पीडीएफ में ले लेंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे। प्रिंट बुक उन्होंने कहा यार 500 रुपए खर्चा होंगे, पूरे पूरे 300 रुपए बचेंगे, मैगडी में जाके बर्गर खा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हम प्रिंट बुक नहीं लेंगे, ई बुक ले लेंगे। लेकिन ई बुक में देखा जाए तो अपने कुछ डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा समय तक नहीं पढ़ सकते, और साथ ही साथ जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है ना, वो नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो लोग यहाँ सामने बैठ करके क्लास ले रहे हैं उनको मजा ज्यादा आ रहा है, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो उनको लग रहा है पता नहीं वहां क्या चल रहा है। तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग यहाँ होते तो आपको भी मजा आता। तो बेसिकली ये बात समझिएगा। तो ई बुक का जो इंटरेक्शन है ना, वो कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि लोग ना एक पर्टिकुलर समय तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो बोर होने लगते हैं, पढ़ करके रख देते हैं। और जो प्रिंट बुक होती है तो उसमें आप आराम से पढ़ते भी रहो, अगर आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, चीजों को मार्क भी कर सकते हो, बुक मार्क भी उसका बना सकते हो। तो जाहिर सी बात है, हुआ क्या, भले ही वो प्रिंट बुक 500 रुपए की क्यों ना बिक रही हो, लेकिन लोग प्रिंट बुक को ही प्रेफर करेंगे, ई बुक को प्रेफर नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज और होती है, अगर कोई कंपनी सुई बना रही है और वही कंपनी पेचकस बना रही है, ठीक है, कंपनी का टारगेट क्या होता है? सुई भी बिकनी चाहिए तो हमारा पेचकस भी बिकना चाहिए, जबकि पेचकस की कॉस्ट देखी जाए तो 100 रुपए आएगी, हो सकता है सुई 2 रुपए की आएगी, लेकिन कंपनी का टारगेट क्या होता है? कंपनी का 2 रुपए की सुई बेच के कितना कमा लोगे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन ये आता है कि 2 रुपए वाला भी बिकना चाहिए और 100 रुपए वाला बिकना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उसका मोटिव कहीं पर भी कमाने का नहीं होता है। आपको अगर लिटरली बताऊं, उनका बेसिकली क्या टारगेट होता है? उनका टारगेट ये होता है कि अगर हम 100 तरह के प्रोडक्ट दे रहे हैं ना मार्केट के अंदर, तो सबकी प्रेजेंस मार्केट के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। कंपनी ने सोचा कि यार हमने ई बुक भी लॉन्च कर दी, प्रिंट बुक भी लॉन्च कर दी, ई बुक कम बिक रही है, प्रिंट बुक ज्यादा बिक रही है, भले क्यों प्रिंट बुक की कॉस्ट हमने ज्यादा रखी है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा बिक रही है, ई बुक हमारी कम बिक रही है, ठीक है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग फंडा चेंज करते। उन्होंने फंडा अपना थोड़ा चेंज किया। उन्होंने क्या किया, पहले ये जो ई बुक थी ये 199 रुपीज की मिल रही थी, अब इन्होंने इसकी कॉस्ट घटा दी और कितना कर दिया है? 99। प्रिंट बुक इनकी 500 रुपए की जा रही थी और इन्होंने अब इसकी कॉस्ट क्या कर दी? बढ़ा दी, 599 कर दी। उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट तो हमारा बिक ही रहा था, इसकी कॉस्ट अगर थोड़ी सी और बढ़ा देंगे ना तब भी बिकेगा, तब भी बिकेगा। क्यों? क्योंकि लोगों की नीड है। तो उन्होंने कहा यार ई बुक हमारी नहीं बिक रही थी, एक काम करते हैं, कॉस्ट को थोड़ा कम कर देते हैं, कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, हो सकता है लोग अब ई बुक खरीदने लगे। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, लोगों ने कहा यार कोई बात नहीं, खरीदेंगे फिर भी हम प्रिंट बुक, क्यों? क्योंकि जो मजा प्रिंट बुक में आता है वो ई बुक में नहीं आता। कंपनी का अभी भी ई बुक का सेल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा सब छोड़ो, एक पैकेज बनाते हैं ई बुक। और अच्छा, उनका काम क्या था? उन्होंने कहा यार ई बुक का कॉस्ट कम कर दिया तो यार नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, उतना ही पैसा प्रिंट बुक में बढ़ा लो। तब भी ई बुक नहीं बिकी, प्रिंट बुक ही बिक रही थी। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, दोनों का मिला के क्या बना देते हैं? पैकेज बना देते हैं। वो पैकेज की कॉस्ट कितनी रखी? 650 रुपए। यानी अब लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें पूरा पैकेज लेना ही लेना है। अब लोगों के माइंड में एक परसेप्शन सेट हो जाएगा,
रिच डैड पुअर डैड खरीदनी है अगर तो 650 रुपए देने पड़ेंगे, वो ई बुक भी मिलेगी और उसका प्रिंट बुक भी मिलेगा। यानी अब जो कंपनी की सेल होगी ना वो क्या हो जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो उस कंपनी वाले ने एक्चुअल में क्या करा, आपके माइंड में परसेप्शन जनरेट करा ना, अलग अलग तरह का आरओआई किया ना। आरओआई का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो होपफुली आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि एक्चुअल परसेप्शन कहा किसे जाता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि जूम का जो मीटिंग होता है वो 40 मिनट्स का होता है, तो अगर बाय चांस मीटिंग टाइम खत्म हो जाए, लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं, आप सभी लोग सेम आईडी पासवर्ड डाल करके रीज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सो होपफुली मार्केटिंग आप सभी को समझ में आया होगा। सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग का मतलब क्या था कि अलग अलग तरीके के फंडे अपनाओ, अलग अलग तरह की रिसर्च करो, जैसी मार्केट को और इंडस्ट्री को नीड हो वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। क्या हो गया सर? तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वो जो मार्केटिंग का तरीका हम लोग ऑफलाइन वे में अपना रहे थे ना, हमारी जो ऑडियंस थी वो पहले ऑफलाइन ज्यादा थी। लोग न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ते थे, लोग टीवी पर एड्स बहुत ज्यादा देखते थे ना। आप कोई टीवी पर एड देखता है, और बहुत सारे लोग तो आज न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, मंगाते जरूर है। ठीक है ना? तो बेसिकली अब जो मार्केटिंग का तरीका है वो बढ़ गया है, आपको अपने कस्टमर तक पहुंचना है थ्रू ऑनलाइन। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। और बेसिकली हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं ना, तो जो हमको ऑडियंस मिलती है ना, वो वही ऑडियंस मिलती है जिसको हमारे प्रोडक्ट की नीड होगी। ओके, पहले एक काम करते हैं, 40 सेकंड बचे हैं, जूम की मीटिंग जरा सभी लोग जल्दी से रिकनेक्ट कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं, वरना मेरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। सभी लोग आ जाओ जल्दी से, रीज्वाइन द मीटिंग विद इन अ मिनट।